टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की तरफ से आप लोगों के लिए बाइबल स्टडी फिर एक बार प्रस्तुत करने में हमें बहुत आनंद हो रहा है। और हमारे बीच में फिर एक बार प्रोफेट और पास्टर एलन रामटेके हैं जो हमें इस बाइबल स्टडी में चलाते हैं। और इन्होंने जो विषय चुना है वो है स्मार्ट किड्स अंग्रेजी में, और या फिर हिंदी में कहे गए तो डेढ़ शाने बच्चे। ये थोड़ा अलग विषय है, लेकिन बहुत बड़ी खूबी से वो हमें इस बाइबल स्टडी में चला रहे हैं। ये जो बाइबल स्टडी है ना केवल हम दोनों में बातचीत है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इसमें से अभ्यास करें, आप इसे पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, और आखिर के आखिरी दिनों में आप बाइबल में घुस जाए, अपने जिंदगी को इसमें पूरी तरह से आप डुबो दे, वचन में डुबो दे। यही हम चाहते हैं। और आपकी जो आत्मा की जो भूख है वो हम इस बाइबल स्टडी से हम उसे खिलाना चाहते हैं, ताकि आपके आत्मिक जो जीवन है वो और बलशाली बने, सामर्थ्य बने, और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में पूरी तरह से भर कर तैयार रहे वो स्वर्गारोहण के लिए, और जो आखिर के दिनों में जो होने वाले उसके लिए भी आप तैयार, पूरी तरह से तैयार रहे। यही हम चाहते हैं। और इसीलिए ये जो विषय जो पास्टर ने लिया है हमारे बीच में, ताकि हम आखिर के दिनों में तैयार रहे, ये विशेष इस मंडली के लिए है और कलीसिया के लिए। और हम चाहते हैं कि आप सभी जन इसका लुत्फ उठाएं। हम ये तो ज़रूर जानते हैं कि आप हमें सवाल भेज रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसमें और जाए और गहराई में चले जाए, और सवाल जो है हम तक पहुंचाए, ताकि आपके सवाल और आपकी जो भूख है वो हम वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा, जो पवित्र आत्मा इन्हें सुझाएगा उस द्वारा हम आपको दे सके। तो आइए बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम दुआ करें और इस बाइबल स्टडी में जाएं। Let's pray. Wonderful Father, we thank you, Lord my God, for this time that you've given unto us, O Lord my God. And today, this morning, even as we come to you, Father, we come to you the way we are, but we come for a change. We come with our open hearts and open minds, O Lord my God. And we pray unto thee, O Lord my God. Open our ears that we may hear your word, and open our understanding that we may understand your word and take in your word in our lives, O Lord my God, and take in deep, so that we can bring forth 100-fold fruit according to your word, O Lord my God. And Father, beloved Holy Spirit of God, we welcome you in this place, Lord. We welcome you in our lives, and all those who are watching this video, whenever they are watching, Lord my God, whichever place they are watching, whichever location that they are watching it from this moment, I welcome you in that place right now in Jesus' mighty name, O Lord my God. And just erect a hedge of fire around them, O Lord my God, even as they're glued into this Bible study, their complete mindset will be upon your word, O Lord my God. They'll be connected to you. They'll be connected in your presence, O Lord my God. And they shall seek from you. They shall be seeking your word as hungry people, O Lord my God, is my prayer unto thee in the mighty name of Jesus. And beloved Holy Spirit of God, even as they're doing so, Father, I pray thee in the mighty name of Jesus, just open up, O Lord my God, your word unto them, O Lord my God. Unfold those revelations from your word to them, O Lord my God, that they shall dig in deeper even as you speak to them, O Lord my God. Even as you feed them, they shall eat more of you, O Lord my God, is my prayer unto thee, beloved Holy Spirit of God. This time and your people and their minds and their lives, I just commit into your mighty holy hands. And thank you for your presence, and thank you for your word, O Lord my God, that you're going to speak to us, O Lord my God, through this Bible study. And thank you, O Lord my God, for feeding us in a new way, is my prayer. Thanks once again, O Lord my God. Thanks for everything that you have done and that you're doing through this ministry and through this Bible study, O Lord. Once again, O Lord, I hand over this time into your mighty holy hands. You lead and you guide and you speak to your people what you desire, O Lord, man, according to their hunger and thirst, O Lord, my God, according to their levels. I pray, speak to them and elevate them to the place where you want them to be, O Lord, my God. And that so that in these last days, O Lord, my God, they shall be founded strong in your word and stand upon the rock of all ages, O Lord my God, that even if the storm shall come, even the wind shall hit them, Lord, they shall not be shaken, but they shall stand firm, O Lord, is my prayer unto thee. Thanks for your presence, and thanks for this time, and thanks for your word. In the mighty name of Jesus, I pray and ask, O Lord. आमेन आमेन। और फिर एक बार पास्टर आपका स्वागत करता हूँ इस बाइबल स्टडी में। और मैं चाहता हूँ ये जो विषय जो है डेढ़ शाने बच्चे, आप इसके गहराई में चले जाए, और जो सवाल लोगों ने पूछे, जैसे आप इसका खुलासा करोगे, मैं एक एक करके आपको पूछता जाऊंगा। ओके, सो मेरा आज का जो उसका रेफरेंस है 1 Samuel 15 and verses 1 to verse 9. 1 Samuel 15 and verses 1 to verse 9. आइए हम पढ़ेंगे. Let us read that. Samuel also said unto Saul,
The Lord sent me to anoint thee to be king over his people, over Israel. Now therefore hearken unto the voice of the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have. Spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. And Saul gathered the people together and numbered them in Telaim, 200,000 footmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city of Amalek and laid wait in the valley. And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest I destroy you with them. For ye shewed kindness to all the children of Israel when they came up out of Egypt. So the Kenites departed from amongst the Amalekites. And Saul smote the Amalekites from Havilah until thou comest to Shur. That is over against Egypt. And he took Agag, the king of the Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fatlings and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse that they destroyed utterly. मैं उसे हिंदी में पढ़ता हूँ। पहले शमूएल इसका 15वां अध्याय वचन 1 से आगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा है, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे याद आता है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों के साथ क्या किया, और जब इज़राइल मिस्री से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जा और अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिवा, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या ऊंट, क्या गदह, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइम में गिना, और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बिठाया, और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों ने के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इज़राइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। और केनी अमालेकियों के मध्य से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के सामने है, अमालेकियों को मारा, और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा, और उनकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से शाऊल को परमेश्वर ने जब राजा करके अभिषेक किया। ओके, ये जो चुनाव था कि पहली बात तो परमेश्वर को पसंद था ही नहीं कि इज़राइल राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के तरह खुद को देखे और एक इंसान को राजा करके ले। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी जो जरूरत, उनकी जो मांग थी, उसको सुनते हुए इसको मंजूरी दी, और परमेश्वर ने उनके चुनाव को, परमेश्वर उनके लिए राजा चुना, वो शाऊल था, और एक व्यक्ति को चुना जो कि उसका नाम शाऊल था, और उसको राजा करके नियुक्त कर लिया, फिर अभिषेक कर लिया। अभी जब उसको आज्ञा दी जाती है, आज्ञा क्या दी जाती है कि किसी को भी वहां पर तू बचा मत, किसी को भी छोड़ मत, सबका नाश कर दे, सबकी वाट लगा दे, सबको खत्म कर डाल। लेकिन हम देखते हैं भाई साहब, ये अपने मन से चलता है, खुद के ही नजरों में सियाना बन जाता है, और जो उसको सही लगता है उसका निर्णय वो ले लेता है।
आज हम इस बात को अगर देखें, आज की तारीख में जब हमें कोई आज्ञा दी जाती है, हमें आज्ञा हमें मालूम होती है, फिर भी हम उसको अपने हुसूलों से, अपने हिसाब से, अपने मन से उस आज्ञा को थोड़े से हम तोड़ मरोड़ कर, चेंजेस करके हम उसमें हम हमारी इच्छा, हमारे मन के विचारों को लगा देते हैं। ऐसे बंदों को मैं कहता हूँ स्मार्ट किड्स, देर साने बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर क्या जानता है। अब मेरा सवाल यह है कि शाऊल को ऐसा क्यों लगा? शाऊल ने ये करने की हिम्मत क्यों की? आपको क्या लगता है? शाऊल अभी वापस हम सॉल की साइकोलॉजी देखेंगे हम कि उसने ऐसे करने की हिम्मत की कैसे? क्या उसको आज्ञा क्लियर कट आई थी, तो क्या कारण हो सकता है? तो दो चीज है और मेरा एक सवाल भी है उसमें, लेकिन पहले आपने जो पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, कहीं ना कहीं वो इंसान है, उसका खुद के एक चुनाव होते हैं और परमेश्वर ने चुनाव का जो फित्र है वो या फिर जो गुण है वो परमेश्वर ने इंसान को देके रखा है। तो शायद उस वजह से उसे जो अच्छा लगा उसके नजरों में, उस हिसाब से उसने किया। हालांकि शायद उस वक्त उसने परमेश्वर के नजरों से नहीं देखा कि क्या अच्छा है क्या नहीं। परमेश्वर ने कहा खत्म कर, उसने सोचा ये तो अच्छा है, ये तो मैं रख सकता हूँ। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है कि कहीं हम जाते हैं, दो लोग में कुछ भेदभाव होते हैं, एक बोलता है ये अच्छा है, दूसरा बोलता है ये अच्छा है। हर एक के नज़र में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरा होता है। किसी को काला पसंद है तो किसी को गोरा पसंद है, किसी को नीला पसंद है तो किसी को हरा पसंद है। तो शायद इसी वजह से जो शाऊल के नज़रों में उसे लगा कि ये सही है, उसने वो किया। मैं इस बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े इसमें गहराई में जाता हूँ। ये समझने के लिए हमें यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, उसके पहले का जो माहौल है, हमें वो देखना जरूरी है। ये समझने के लिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से सबसे नजदीक जो बंदा था वो था यहूदा इस्करियोत। वो सबसे नजदीक वाला था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के थाली में से खाता था। जी हाँ, इतना नजदीक का था कि वो प्रभु यीशु मसीह की प्लेट शेयर करता था। और ये बंदे ने, हम सब जानते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे दिया, पकड़वा दिया। लेकिन हम जब देखते हैं उसके बाद में, जितने भी हम मत्ती रचित सुसमाचार, ये मरकुस है, फिर लूका है, फिर यूहन्ना है, कोई भी हम जब पढ़ते हैं तो उसके बाद में कोई भी चेला या फिर जो लेखक है, लूका हो, मत्ती हो, यूहन्ना हो, मरकुस हो, वो उसको सम्माननीय नजरों से नहीं देखते हैं। यहूदा इस्करियोत को, पतरस भी, कोई भी उसको रिस्पेक्टफुली नहीं देख रहे। हर कोई भी उसको बोल रहे हैं कि जिसने घात किया, उसके उनके मन में उसके लिए ना कोई सम्मान रहा, ना कोई प्यार रहा, कुछ नहीं, खत्म हो गया। ये फितरत बहुत जरूरी होती है जब हम एक परिवार में रहते हैं। बाइबल ये कहता है, शमूएल उसी फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 में, और वर्सेस हम पढ़ेंगे वर्स 2 में, Thus said the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he laid wait for him in the way when he came up from Egypt. ओके, पढ़िए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे याद आता है कि अमालेकियों ने इस्राएल से क्या किया, और जब इस्राएल मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। And verse 6 में पढ़ते हैं, And Saul said unto the Kenites, Go, depart, get you down from amongst the Amalekites, lest I destroy you with them. Why? Because for ye shewed kindness to all the children of Israel when they came out of Egypt. So, अगर आप पढ़िए वर्स 6 पढ़िए। और शाऊल ने केनियों से कहा कि वहां से हटो, अमालेकियों के मध्यम में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। या अभी पॉइंट कहां पर आता है कि परमेश्वर बदला क्यों ले रहा है? अगर परमेश्वर को नहीं मारा गया है, लेकिन परमेश्वर के संतानों को मारा गया, परमेश्वर के बच्चों को मारा गया है, जी हाँ, तो परमेश्वर के दिल में अभी भी
उस अमालेकी लोगों के लिए गुस्सा है? अगर परमेश्वर के दिल में परमेश्वर का क्या जाता है? अगर मैं उस एंगल से अगर देखूं, जैसे जिस एंगल से शाऊल देख रहा है, सॉल देख रहा है, सॉल क्या बोल रहे हैं कि बाबा केनी लोगों को कि तुम लोगों ने बाबा उनको स्पेयर किया, इसलिए तुमको मैं पहले आगाह कर दे रहा हूं, तुम लोग भाग निकलो तो भाग गए। ओके, लेकिन जिनके ऊपर नफरत करनी चाहिए थी, उसने उनके ऊपर नफरत पूरी तरीके से नहीं की। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मैं परमेश्वर के बारे में थोड़ी बात करता हूँ, खुदा को क्या हो गया? अगर कुछ इजराइलियों को जब वो मिस्र से निकले हुए थे कई साल पहले, उनको अगर रास्ते में अमालेकी लोगों ने मारा, तो खुदा तू क्यों बदला ले रहा है इतने सालों के बाद में? तेरा क्या जाता है? लेकिन उसका जाता है क्योंकि वो उसके बच्चे हैं और उनका लहू पुकार रहा है न्याय के लिए। तो खुदा अगर उन लोगों से अगर बदला ले रहा है, अमालेकी लोगों से बदला ले रहा है, तो ये अगर खुदा के ओर से नियुक्त किया गया राजा था, तो इसका कर्तव्य प्रथम बनता है कि वो खुदा का प्रतिनिधि है राजकीय दौर के ऊपर, और उसका कर्तव्य प्रथम बनता है कि वो जाके खुदा का काम पूरी तरीके से करे। लेकिन उसने वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको उन इजराइल लोगों का जो दर्द है उससे कोई उसको वाकया नहीं था, रिलेशन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। उस वक्त जो हुआ था उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था, और बाद में भी उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो खुदा के लोगों को, जैसे सलमोन राजा का जो दुआ थी कि तेरे लोगों का मैं न्याय करूं, तेरे लोगों को ठीक से मैं चला सकूं, इसलिए से मुझे ज्ञान दे, जी हाँ, बुद्धि दे। ये जो एक फीलिंग ऑफ वननेस जो होता है, टुगेदरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। समझो मैंने ये फ्लास्क बनाया, ये मेरी कंपनी का प्रोडक्शन है, और अगर मुझे कोई तकरार आती है कि बाबा इसमें कोई फॉल्ट है, लेकिन अगर मैं इस फ्लास्क को मेरा समझता ही नहीं हूँ, मैं इससे मेरे हर एक प्रोडक्शन से मैंने ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, और किसी में अगर मेरे को रिपोर्ट्स आ रहे कि इसमें कोई फॉल्ट है, तो अगर मेरा रिश्ता इनसे बहुत ही क्लोज है, मैं इनको अपना करके मानूंगा, तो मैं उस पीस को उठाऊंगा, उसको चेक करूंगा, उसको रेक्टिफाई करूंगा, उसको सही करूंगा। लेकिन अगर उसमें सच्ची में कोई जेन्युइन फॉल्ट है, तो मैं वो पूरे सीरीज को चेंज करूंगा, एक नया पूरा सीरीज लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कंपनी के हर एक प्रोडक्ट से मेरा रिलेशनशिप वाक्य है, मेरा बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, आप जुड़े हुए हो। यस, और मैं समझता हूँ कि वो मेरी फैमिली का एक पार्ट है। जी हाँ। तो ये जो रिलेशनशिप होना चाहिए था सॉल में, ये नहीं था। वो सिर्फ राजा बन गया, उसके बाद में वो खुद को ही अपनी मन मर्जी करने के लिए वो चल पड़ा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो भी मैं सिस्टम इंचार्ज हूँ, और अगर मेरे सर्विस में, चर्च के सर्विस में अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है, तो वो सर्विस पास्टर की नहीं है, वो मेरी भी उतनी सर्विस इतनी पास्टर की है। और अगर कुछ फॉल्ट आता है, कुछ आवाज में गड़बड़ी आती है, तो मेरे सर्विस में प्रॉब्लम हो गया है, मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, तो उसको तुरंत ही चेक करना, उसके ऊपर काम करना है, मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। अगर उसमें कोई आगाग है तो उसको मारना है, उसको रेक्टिफाई करना है, और अगर कोई वहां पर जो चीज सही है उसको और बढ़ावा देके सही और अच्छा बेहतर करना है, ये मेरा काम बन जाता है। तो ये कब फीलिंग आती है? जब मैं उस देश से, उस लोगों से मेरी एक फैमिली करके ऐसे समझता हूं कि उनकी मौत का बदला मैं लूंगा। ये जो पॉइंट उसमें नहीं था। इसी से एक सवाल भी उठता है पास्टर राजन, आपने भी कहा कि शाऊल को परमेश्वर ने ही नियुक्त किया था, राजा करके अभिषेक किया था। और हम देखते हैं कि वचन 1, इसी अध्याय के वचन 1 में वहां पे लिखा है कि शमूएल ने शाऊल से कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुझे इजराइल पर राजा नियुक्त करने के लिए, और परमेश्वर यहोवा की बातें सुन ले। और वो कहता है कि यहोवा ने क्या क्या कहा है।
सवाल ये है कि परमेश्वर शाऊल से भी कह सकता था, हम्म, तो शमूएल की क्या जरूरत थी? अगर वो अभिषिक्त है, हम्म, शाऊल अभिषिक्त है, हम्म। तो यहाँ पर शमूएल की क्या जरूरत? वही तो एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि जिस तरीके से एक्चुअली उस प्रॉफिट का काम क्या होता था उस टाइम में कि परमेश्वर की बानी सुन के लोगों को या राजा को बताना। ये दाऊद ही ऐसा एक राजा रहा है जो डायरेक्टली परमेश्वर का एफोर्ट पहनता था कभी कभी, और वो बानी में सुनता था और वो परमेश्वर से बहुत निकट था, उनका पर्सनल रिलेशनशिप था, हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद में शायद सॉलोमन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दाऊद ही वो राजा रहा है इजराइल का जो बहुत ही निकट था परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि अ मैन आफ्टर माय गॉड्स ओन हार्ट, इंसान जो मेरे दिल के पीछे है। या तो जी। पर्पस ऑफ गॉड के पीछे है। ओके, तो लेकिन ये जो शाऊल था, ये परमेश्वर के पास, अगर वो देखो यही तो प्रॉब्लम की शुरुआत है कि वो पर्पस ऑफ किलिंग को समझ ही नहीं पाया कि क्यों मारना है। वो यहाँ से नहीं जुड़ पाया, वो सिर्फ यहाँ से उसने जुड़ पाया बस। और फिर जाके वो सोचने लगा उधर, अरे इतनी अच्छी चीजों को क्यों मारूं मैं। ऐसा ही होता है जब इंसान देखो, मैं इतना एक बात जानता हूँ, जब हम परमेश्वर में आते हैं या सेवकाई के लिए कभी कभी ऐसे भी सवाल आते हैं कि स्टीफन को जो मारा गया, क्यों मारा गया, स्टीफन क्यों मुंह खोला, क्यों बोला, अगर बोलता ही नहीं तो मरता ही नहीं। जी हाँ, सही है। ये इंसान यहाँ से नहीं समझ सकते इन चीजों को। इसको समझने के लिए ये चाहिए, यहाँ से समझना है, और इंसान यहाँ से कभी समझ नहीं सकता। इट इज अ सीट ऑफ इमोशंस, नॉट थॉट्स। योर हार्ट इज अ सीट ऑफ इमोशंस। भावना का केंद्र बिंदु है, भावनाओं का आसन है तुम्हारा दिल। वहां पर विचार नहीं आते दिल में। ओके, तो बेसिकली ये जो राजा था, शाऊल राजा, वो परमेश्वर के अगर करीब होता तो आपने सही कहा कि शमूएल की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वैसा नहीं था उस टाइम में। राजा का काम राजा करेगा और भविष्यवक्ता का काम भविष्यवक्ता करेगा, क्योंकि भविष्यवक्ता का काम सिर्फ वचन बताना नहीं है, बानी बताना नहीं है, आज्ञा बताना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में रहना तो बहुत जरूरी था। कि यहाँ पर देखो, शमूएल भी हम जानते हैं कि शमूएल को भी परमेश्वर ने ही नियुक्त किया था, अभिषेक किया था। शाऊल को भी परमेश्वर ने ही नियुक्त किया था, अभिषेक किया था। और अगर मैं देखूँ तो अगर एदन के वाटिका में जाओ तो वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि परमेश्वर ने आदम से बात किया है, और आदम ने जो आज्ञा दी, होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, हवा को वहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन जरूर उसने बताया होगा। और वहाँ पे हवा जाकर जो उसको ठीक लगता है वो करती है। और यहाँ पर भी जो हम देखते हैं, शाऊल को जो ठीक लगता है वो करता है। तो फिर परमेश्वर से नाता जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। या नाता है ही नहीं ना। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ चर्च में हमेशा जब तुम कलीसिया में आते हो, तुम्हारा पर्पस आना सिर्फ आना नहीं है, परमेश्वर से रिलेशनशिप बिल्डअप करना वो बहुत जरूरी होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ आके वो पास्टर के द्वारा परमेश्वर को जोड़ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। हम सिर्फ एक मीडिया में तुम्हें जुड़ाए, तुमको जोड़ना हमारा काम हो गया। उसके बाद में तुम्हें खुद एक्सेस होना जरूरी होता है। जी हाँ, देखो, जब बच्चा होता है तो माँ के दूध पे वो बढ़ता है, तो क्या जिंदगी में माँ का ही दूध पीते रहता है क्या? नहीं। बाद में उसको फायरेक्स मिला जाता है, फिर उसको कंची है, ये है, वो है, एक्सपाइजेड बहुत कुछ चीजें उसको दी जाती है। जी हाँ। ओके, उसके बाद में वो खुद खाना खाने लगता है, खुद पकाने लगता है। तो ये जो डेवलपमेंटल ग्रोथ होती जो है, ओके, ये मसीह लोगों में नहीं होती। स्पिरिट की बात कर रहा हूं मैं, नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई उनको इंसान ही चाहिए। मेरा सवाल है क्यों? When you have got the Holy Spirit, अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो उससे बेहतरीन कौन है? उससे और एक पॉइंट थोड़ा और आगे जाऊंगा, आपको इंसानों की दुआ क्यों चाहिए? अगर आपके लिए प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, उससे बेहतरीन किसकी दुआ होगी? किसी के भी नहीं। देन मैं ये बोल सकता हूँ, दुनिया के सारे सेवक वर्गों, जितने पास्टर लोग, जितने भी ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, उनकी सारी दुआएं आपके लिए इकट्ठी भी की जाए
परमेश्वर यीशु मसीह का सिर्फ प्रभु के खुदा के पास देखना आपके लिए उतना ही काफी काफी है। आमेन आमेन। आई डोंट नो, मुझे समझ में आता लोगों को इतना एडिक्शन क्यों है। बाइबल में लिखा है कि प्रे फॉर वन अनदर, ये नहीं लिखा है दुनिया को बताते घूमो प्रे फॉर मी प्रे फॉर मी प्रे फॉर मी, हैंडबिल मत बात, डोंट डिस्ट्रीब्यूट हैंडबिल्स प्रे फॉर मी, ये क्या है? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर पवित्र आत्मा क्यों दिया? फिर अगर परमेश्वर आपकी दुआ नहीं सुन रहा है इसका मतलब कुछ तो ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज को ठीक करो ना। हाँ ठीक है, बताया गया है सबके लिए दुआ करो तो करो, एज अ बिलीवर यू शुड प्रे फॉर एवरीबॉडी, लेकिन किसी के बीच में जाके रुको मत, पिता और तो उस बच्चे के बीच में। यही तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। इसका रिलेशनशिप था ही नहीं, जैसे हवा का नहीं था। हवा का क्या रिलेशनशिप था? नथिंग, जीरो। तो थोड़े में अगर देखा गया तो अगर रिलेशनशिप नहीं है तो डेढ़ छाने बनने तो जरूरी है। या और रिलेशनशिप में भी मैं आपको इसमें बाद में आने वाला हूं मैं कि एग्जैक्टली परमेश्वर किस प्रकार के बच्चे चाहता है। मैं उस बात पे वो बाद में आने वाला हूँ, सीरीज में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, परमेश्वर के दिल में क्या पर्पस है, कि क्यों। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि मैं जब क्रिएटर के साथ जुड़ना चाहा तो इट वाज नथिंग, देयर वाज नोबडी फॉर मी। वहां पर मेरे को कोई पहचानने वाला था ही नहीं। जी हाँ, तो नथिंग, जीरो। यीशु मसीह ही दरवाजा है जो तुम्हें वो अथॉरिटी देता है, वो एक्सेस देता है उस पिता, उस क्रिएटर को पिता बोलना ही नहीं, उतना ही नहीं, लेकिन उस मरने के बाद उसके पास जाने का एक्सेस, और वो तुम्हें स्वीकारने का एक्सेस। तो ये शाऊल का प्रॉब्लम यही था कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था, इसलिए वो परमेश्वर के पर्पस के साथ भी जुड़ा नहीं था। यही तो बात एक्सप्लेन होता है ना कि कोई भी अगर आप फर्म देखो, मुझे पता है कि नाइकी में जो भी काम करते हैं, भले वो ट्रॉली चलाने वाले हो, या फिर वो शूज पे सोल लगाने वाले हो, या फिर वो लेस बनाने वाले हो, या फिर वो शूज की डिजाइनिंग करने वाले हो, या क्लॉथ स्टिचिंग करने वाले हो, राइट फ्रॉम जो चपरासी है वहां पर झाड़ू मारता है, वहां से लेके डायरेक्ट सीईओ तक, किसको भी पूछो तुम्हारा विजन क्या है, सबका विजन एक ही है, पर्पस। दे आर ऑल entwined with the purpose of the company. उस कंपनी के पर्पस के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, विजन सबका एक ही है, इसलिए वो कंपनी आगे बढ़ती है। सिमिलरली शादी में भी देखो, अगर मैरिज में अगर पर्पस दोनों का, पति पत्नी का सेम नहीं है, इट्स ओवर। एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं हम। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक कार है और दो पहिए डिसाइड करते हैं हमको आगे जाना है, दो पहिए डिसाइड करते हमको पीछे जाना है, खत्म हो गया वो। तो पर्पस के साथ वो जुड़ा नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं था। जी हाँ, यही फर्क था दाऊद और उसमें। दाऊद का बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज था, क्योंकि वो इंसान है, ये भी इंसान है, लेकिन इंसान का जो पर्पस बनाने का था वो दाऊद ने पूरा किया। खुदा का इंसान बनाने का पर्पस तो था, वो दाऊद पूरा कर रहा था। कोई बाद में उस भाग के ऊपर आने वाला हो, लेकिन ये शाऊल नहीं करता था, इसलिए उसको जो सही लगा जी हाँ, उसने किया। ये आपने इंसानों की बात छेड़ी है पास्टर, उसी के ऊपर एक सवाल एक सिस्टर ने औरंगाबाद से पूछा है, और वो याकूब के पत्री से है। याकूब इसका 5वां अध्याय और वचन 17 में वहां पर लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख जेम्स हम कहते हैं उसको। जी हाँ, अंग्रेजी में जेम्स कहते हैं। Okay. एलिया भी तो चैप्टर कौन सा? 5 है और वचन 17 और 18। ओके वहाँ पे लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यहाँ पर ऐसे वो सिस्टर ने पूछा है कि यहाँ पर ऐसे विशेष रीति से क्यों लिखा है कि वो मनुष्य था। यहाँ क्या कनेक्शन होता है कि इंसान हमारी तरह इंसान है और उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई? उसके लिए उसको वचन 13 से पढ़ना पड़ेगा। इज एनी अमंग यू अफ्लिक्टेड, let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. बढ़िया।
13. वो खोल देता हूँ Okay. उसे। Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. Let them pray over him, anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. 15 वचन 13 से पढ़ता है। याकूब इसका 5वां अध्याय और 13 से आगे। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से ऊपर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। और वचन 15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाए। Verse 16, confess your faults one to another and pray for one another. अभी देखो यहाँ पर लिखा है pray for one another। जी हाँ, यहाँ लिखा है, सिर्फ यहाँ ये बोला नहीं गया है कि दुनिया को बताते फिरो मेरे लिए दुआ करो। जी हाँ। Okay, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. अभी verse 17 में लिखा है, Elias was a man subject to like passions as we are. Okay, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on earth, that by the space of 3 years and 6 months. He prayed again, and heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. ये इसका मतलब ये है कि अगर एलायस हमारे जैसा इंसान होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके लिए मेघ जो होता है, जो रेन है, जो बारिश है, उस बरसात को रोका, तो अगर इंसान होने के बावजूद इतनी बड़ी दुआ उसके लिए सुनी गई, तो क्यों नहीं हमारी सुनी जाएगी? इंसान, सिस्टर का सवाल मैं समझा नहीं एग्जैक्टली क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे विशेष तरीके से क्यों लिखा है कि वो मनुष्य था? क्योंकि मनुष्य था। मीन समझा नहीं मैं एग्जैक्टली इसका कहने का क्या अर्थ है। मुझे ऐसा लगता है उनका कहने का अर्थ ये है कि वो कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता था कि एलिया की सुनी गई। हाँ, तो क्योंकि ये जो वर्ड्स है 13 ऑनवर्ड जो लिखा है, वो मनुष्य की वीकनेस में भी परमेश्वर दुआ सुनता है। उस लेखक का कहने का अर्थ ये है, पर्पस ये है कि तुम कितने भी कमजोर हो, फिर भी तुम्हारे लिए तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी अगर तुम दुआ में बैठोगे तो। वो भी यहाँ पर लिखा है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलेथ मच। राइचियस कौन है? जिनको परमेश्वर के लोगों के, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के द्वारा धुलाए गए, वो सब न्यायी है, सब राइचियस है, तो हो गया ना फिर। लेकिन फर्वेंट प्रेयर, फर्वेंट का क्या मतलब होता है? इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर का मतलब, फर्वेंट का क्या लिखा होता है? यहाँ पर गिड़गिड़ा कर लिखा हुआ है। गिड़गिड़ा नहीं बोल सकते हम, फर्वेंट बोले तो तीव्रता से दुआ करना। हमारे लोग जो दुआ को बैठते हैं ना, उनका दुआ करने का टाइम देखो, कितना देर दुआ करेंगे। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे अभी एक, समझो एक फ्लैट खरीदना है और मुझे लोन चाहिए, समझो मैं लोन के लिए दुआ कर रहा हूँ, तो दुनिया को सबको बोलेंगे वो दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए, और खुद आधा घंटा ही करेंगे। ऐसे में कैसा होगा? नहीं होने वाला। खुद आधा घंटा ही करेंगे, अब हम सो जाएंगे। इसको इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर नहीं कहते। फर्वेंट बोले तो क्या? तीव्रता से बैठना, और वो भी आधा घंटा नहीं, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब तक वो जवाब नहीं आता है दिल में, आत्मा में, फेथ में, तब तक बैठना, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे ताकत से। तो ऐसे अगर दुआ करेंगे तो हम सोलर सिस्टम को भी रुका देंगे जगह, इतनी पावर है। ये कोरोना क्या है? कुछ भी नहीं है। ये फ्लैट क्या है? फ्लैट का लोन क्या? कुछ भी नहीं है वो। लेकिन वो इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। फर्वेंसी से दुआ करो, फर्वेंसी से, पूरे तीव्रता से, पूरे तीव्र, पूरे जोश से, पूरे दिल से, पूरे उमंग से दुआ करो। आधा घंटा करने का, सो जाने का, उसके बाद में बोलेगा मेरा आंसर है, मेरे दुआ करो। कैसा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखो, परमेश्वर भी ये देखता है कि तू कितना चाहता है कि तुझे वो फ्लैट मिले,
तू खुद कितना चाहता है, हम्म, तुझे जरूरत है क्या उस चीज की, परमेश्वर वो देखता है। सही है। तो इधर लिखा गया है, इसका लेखक जो याकूब है उसका कहने का मतलब क्या है कि एलायस जो एलिया था वो भी एक इंसान ही था, लेकिन उसके दुआ की वजह से परमेश्वर ने बारिश नहीं होने दी 3 साढ़े 3 साल। तो एक इंसान कितना भी कुछ भी महान होने दो, उसने आग अग्नि बुलाई सब कुछ हो गया, लेकिन वो फिर भी इंसान ही है ना। तो यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ सब लोगों से कि अगर आप लोग इंसान हो तो आप में कमजोरी होगी ही। आई डोंट नो व्हाई हम क्रिश्चियन लोगों को कोई भी चीज फॉल्टलेस क्यों चाहिए। अच्छा, ये हमारे में, हम मसीह लोगों में बीमारी है। आई डोंट नो मसीह में है यार, शायद इंसानों में ये बीमारी है कि खुद फॉल्ट से भरे, लेकिन दूसरा जो हमें चाहिए वो परफेक्ट चाहिए। तब हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने ये बहुत स्टडी किया है ये बात के ऊपर। मैं हॉलीवुड के जो हीरोज है, इंडियन मूवीज के नहीं, हॉलीवुड के उन हीरोज का मैं फेस स्टडी कर रहा था। आप मुझे एक हीरो बताए जो ये था, क्या नाम उसका, जेम्स बॉन्ड अभी रिसेंटली बन गया वो लास्ट, डैनियल क्रेग। उसके पहले जितने भी जेम्स बॉन्ड हो गए वो दिखने को चिकने थे, लेकिन डैनियल क्रेग के बाल कम है लेकिन बिल्ट अच्छा है, स्ट्रक्चर, लेकिन फेस कट इतना कुछ ऐसा भारी दिखता नहीं है वो। और अब बाकी के भी सिल्वर स्टैलोन देखो, ओके, फिर बहुत सारे, नाम भी मुझे मालूम नहीं, वो दिखने को जरा ऐसे और दिखते, ऐसे एकदम ऐसे हैंडसम दिखते नहीं, लेकिन वो हीरो है। हॉलीवुड में अक्सर देखा है कि विलन बेहतर दिखता है। हाँ, तो देखा गया था। तो ऐसा क्यों, आपने कोई सोचा इस बात के ऊपर? नहीं। एक बार मैंने इसका इंटरव्यू देखा, जो लोग कास्टिंग करते हैं ना, जी हाँ। तो वो डिस्कवरी पे चल रहा था इंटरव्यू, तो उनको पूछा गया कि आप ऐसे ही लोगों को क्यों चुनते हीरो जो दिखने को अच्छे नहीं होते, मीन्स दे आर लुकिंग वेरी वेरी, ऐसा ना कि कुछ किसका ऐसा ऑड रहेगा, कुछ अलग ही शेप रहेगा फेस का। तो बोले कि इट इज नॉट नेचुरल टू बी परफेक्ट। क्या बात है। क्या बात है। परफेक्शन इट इज नॉट नेचुरल टू बी परफेक्ट। अगर कुछ भी परफेक्शन में है, एकदम परफेक्ट है, नोज, आईज, ईयर्स, शेप, तो वो इंसान जो पब्लिक है उससे रिलेट नहीं कर सकती खुद को। व्हाई, आप सोचो, व्हाई इज अमिताभ बच्चन सो फेमस, इतना पसंदीदा क्यों है आज की तारीख में? उसके पास ना एब्स है, ना बिल्ट है, ना कुछ भी नहीं। उनका अलग एक फितरत है। नो, बिकॉज उसका फेस कट देखो, इज नॉट वेरी हैंडसम। शाहरुख खान को भी देखो, इतना हजरंगा नाक दिखा कैसे है? देखो नाक उसका कैसा है। जो भी हीरो ज्यादा दिखने को हैंडसम नहीं है ना, अगर उसकी एक्टिंग अच्छी आती है, हिट है। तो बेसिक इशू होता है कि इंसान ज्यादा परफेक्शन से रिलेट नहीं कर सकता, यानी कुछ गड़बड़ी है फिर। ऐसा हम ही समझ लेंगे। लेकिन चाहिए तो हमें परफेक्शन खुद के जिंदगी में, लेकिन जिन लोगों को हम पर्दे पे पसंद करते हैं वो दिखने को इतने खास नहीं रहते। उनका कहना क्या था कास्टिंग लोगों का, कि ऐसा फेस हमें चाहिए होता है जो दिखने में रफ एंड टफ दिखता है, सब टोन अपार्ट, सब पूरी तरीके से मारा हुआ, फिर भी वो खड़ा है। इसको हीरो करके हम प्रस्तुत कर सकते लोगों के सामने, लोगों को ऐसा बंदा पसंद आता है। तो उसी तरीके से हमें क्यों ऐसे चाहिए पास्टर लोग या बिलीवर लोग जो एकदम परफेक्ट रहेंगे? कौन है? हम एडम से बैठ के लिखेंगे लिस्ट, एक नाम जो परफेक्ट रहा हो, एक ही नाम। यीशु मसीह का अगर बारे में निकाला, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उसको भी हमारा हीरो करके आने के लिए उसको पूरी तरीके से खुद को फाड़ना पड़ा। ही वाज टॉर्न, तभी हम उसको हीरो करके लेते हैं। जब तक वो उसमें से गया नहीं, जब तक उसने क्राउन ऑफ थॉर्न्स नहीं पहना, तब तक उसको क्राउन ऑफ ग्लोरी नहीं पहनाया गया।
जी हाँ। तो क्यों हम खुद को फिर वैसे देखते कि अरे मैं होली नहीं है इसलिए मेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी, ये रॉन्ग है। एलायस भी इंसान ही था, पौलुस खुद कहता है जो मैं करना चाहता हूँ मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। फिर उसको अगर पूछेंगे मरने के बाद में, बाबा तू क्या क्या नहीं करना चाह रहा था, तू कर रहा था, जो वो लिस्ट बताएगा, तू ये सब पाप करता था, हमको लगा तू बहुत पवित्र था। बोले क्या डोंगला तो पवित्र हड़ मैं यहाँ पर आया हूँ उसके लहू के द्वारा, बाकी कुछ मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है। दी एंड में ये बात मसीह लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हम स्वर्ग हमारे कीर्ति पे, हमारे कर्मों से नहीं जाने वाले। जी हाँ। ये हमारे दिमाग में जो सड़ेला घान है ये निकलनी जरूरी है। हम नहीं स्वर्ग जाने वाले ऐसे हमारे कर्मों से। तुम कितने भी भले रहो, बाइबल में वो भी एक वचन है कि इंसान की जो धार्मिकता है वो परमेश्वर की नजरों में गंदी चिंदी के समान है। जी हाँ। लेकिन ये मालूम होने के बावजूद भी हम खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं, और बनाओ लेकिन घमंड करने के लिए नहीं, उसके सामने और नम्र होने के लिए, ताकि हम स्वर्ग में उठाए जाए। लेकिन कितने भी अच्छे रहो, तुम्हारी भलाई की वजह से तुम स्वर्ग नहीं जाने वाले। अगर तुमने अगर पाप नहीं किया इसलिए परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में लेगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। और तुम पाप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे पाप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेगा ही नहीं, पाप नहीं कहा लेगा ही, ये भी गलत फहमी है। करेक्ट, पाप नहीं किया तो परमेश्वर मुझे एक स्वर्ग में लेगा ही, क्योंकि मैंने पाप नहीं किया, वही पाप हो गया। वही पाप हो गया, वो भी एक गलत फहमी है। तो दैट इज रॉन्ग थिंकिंग। तो इंसान वो था इसलिए, बट इट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये कार्य होता है ये, और परमेश्वर का विल होता है कि बारिश रोके तो रोके। यही था कि उसको विल मालूम था, बस उतना ही हम बोल सकते हैं। या फिर जुड़ गया परमेश्वर की वो इच्छा से उस वक्त। और एक बात है कि परमेश्वर उसके वर्ड को ऑनर कर रहा था। जी हाँ। क्योंकि वो उस तरीके से परमेश्वर चलता था। चलने का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं गिरना। बाइबल में खुद लिखा है, द लॉर्ड विल पिक अप द राइचियस। पिकअप बोले तो उसके साथ वो चल रहा है। लॉर्ड खुद चल रहा है उसके साथ में, तो वो गिरता है परमेश्वर उठाता है, गिरता है उठाता है। ये एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस हम इंसान है, हम गलतियां करते हैं, हमारे में भी इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलेंगे, ये इम्पोर्टेंट। और अक्सर ये होता है पास्टर कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हम गिरे, हमने गलत किया, अब हम कलीसिया में नहीं आएंगे। उस वजह से कुछ लोगों के होते हैं। तो आपने एक बात भी छेड़ी थी उससे पहले बात करते वक्त कि जो पर्पस है सिर्फ आना ही नहीं, लेकिन क्यों आ रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कलीसिया क्यों आता हूँ, मेरा आने का कारण क्या है? जी हाँ। व्हाई डू आई कम? कोई लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए आते, बाबा मैं आ गया, देख एक समाज में एक नाम। कोई लोग उनकी सोशल स्टेटस उनका बना रहे कि मैं इस चर्च में जाता हूँ, इस चर्च का मेंबर हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लोग देखते मीन्स ये गॉड टीवी और ये शुभ संदेश जो भी चैनल्स पे बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स आते हैं, उनको जब मैंने बहुत लोगों को पूछा है कि तुम ये क्यों देखते हो, क्या मीन्स पर्पस क्या है, तो उन्होंने बोला है कि अरे उनके इधर बहुत गर्दी होती है। मीन्स तुम वचन नहीं देखते, वो क्या बोल रहे हैं, भीड़ को देख के जा रहे भीड़ नहीं जा रहे नहीं, उनके चैनल पे कनेक्ट हो रहे। क्योंकि वहां पर भीड़ है, भीड़ है इसीलिए कनेक्ट हो रहे। अरे वचन उसके थ्रू तुम्हारे जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं, भीड़ बहुत है। तो लॉजिक क्या है, मीन्स तुम क्यों जा रहे हो उस कलीसिया में, उस वक्त तुम ऑनलाइन कनेक्ट क्यों हो रहे हो, क्या मिल रहा है? जी हाँ। इससे थोड़ा बहुत ये भी समझ में आता है पास्टर कि क्यों लोग शायद कलीसिया। थोड़ा मैं और एक पॉइंट बोलता हूँ। आपने अगर देखा कभी पास्टर बेनियन आ जाए या
अभिनव बॉन्के तो नहीं रहे, लेकिन कोई भी ऐसे महान सेवक अगर आ गए तो बहुत सारे मसीह लोग ही जाते और क्या सुनने जाते कि यीशु हमारे लिए मारा। अरे ये तुमको मालूम नहीं है? लेकिन वो भीड़ वाला पास्टर आया ना उधर, कम ऑन मींस मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तुम उनके बाइबल स्टडी के लिए जा रहे हो, बात वो एकदम 100% सही है, जाओ, वेरी गुड, ग्रो। लेकिन इवनिंग मीटिंग उनका है जहां पर तुम्हें तुम्हारे जो लोग दोस्त है जो मसीह को नहीं पहचानते उनको लेके जाना जरूरी है। यही खुद जाके लाइन में खड़े रहेंगे आशीर्वाद के लिए। अरे क्या फायदा है फिर तुम कलीसिया जाके, कलीसिया में आप दुआ के लिए लोगों को बोलो, सब लाइन में खड़े होते हैं, वही लोग हर संडे वही लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों, कैसे, क्या ऐसा बोलो अनॉइंटिंग प्रेयर है, लाइन लगता है लोग। जी हाँ, कुछ में बोलो अनॉइंटिंग सेशन है, सब का लाइन, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। और मैं भी ऐसे था कि टेक इट, टच, गिर गए, आई शुड बी हैप्पी। लेकिन ऐसा एक वाक्य हो गया कलीसिया में जिसकी वजह से मैं सोचने लगा, अरे ये तो वही गिरने वाले लोग थे कि जिनमें कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। तब मैं होश में आया कि ये पावर गिमिक्स कुछ, हाँ मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ कि हाँ ठीक है, पवित्र आत्मा कार्य करता है, लोगों को छूता है, लोग गिर जाते हैं, इट्स गुड, बट इट शुड नॉट बी अ पावर एडवर्टाइजमेंट कि ये एक कार्यक्रम बन जाएगी तुम्हारे आइडेंटिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी पहचान बन जाएगी। अगर ये लोगों को गिराने वाला इंसान है, या आता है कि लोग गिर जाते हैं। ये बेसिकली आज मैं उसके खिलाफ नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा कि अगर तुम कोई मीटिंग को चाहते हो और उधर सिर्फ यही हो रहा है और वचन का जो गहराई है वहाँ पर वो नहीं मिल रही है, तो उस मीटिंग को या फिर इस कलीसिया में जाने का कुछ फायदा नहीं। मैंने एक बार एक वीडियो भी देखा था, एक पास्टर पैरों से उनको आशीष दे रहा था, अनॉइंटिंग पैरों से, हाँ, अपने जूतों को बोला, उनको बोला जूतों मेरा टच करो, और वो लोग गिर रहे थे। मीन्स क्या दिखाना चाह रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था कि उसके जूते में भी पावर है। मीन्स व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? और लोग जाते हैं, लोगों को ना बेसिकली लोगों को मालूम ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग लोगों को मालूम ही नहीं है कि मसीह बोले तो क्या, पावर ऑफ क्राइस्ट बोले तो क्या, नहीं मालूम लोगों को। मीन्स उनको लगता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, आई कैन डू दिस प्रैक्टिकल। मैं एक पेंसिल शार्पन करूंगा, उसका जो ये आएगा ना ऊपर का स्किन, वो भी अगर मैं लोगों को फेंकूंगा उसके ऊपर, तो लोग उसके ऊपर अनॉइंटिंग में गिर जाएंगे। हाँ, बिकॉज व्हाई, दैट इज इट इज पावर, इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू समथिंग, बट दैट इज नॉट राइट। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बंदा, एक प्रीचर था, वो एक औरत को लात मारा था चेस्ट में, इन द नेम ऑफ जीसस, और हीलिंग के लिए। हाँ, एक बंदा था, अभी मैं कैमरा पे वो बताना नहीं चाहता, लेकिन वो भी वीडियो मैंने देखा है, वो लोगों को बोल रहा था अपनी पैंट निकालो, और पैंट में वो पीछे किस कर रहा था, इन द नेम ऑफ जीसस। मीन्स ये क्या है? ऐसा ये कौन सी मिनिस्ट्री है? लेकिन इसकी स्टार्ट यहीं से होती है, लात मारना, पैरों को छूने को बोलना, फिर वो टच, टेक टेक टेक, यही करते रहना, फिर लोग गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। लेकिन उससे आगे क्या? जी हाँ, उसके आगे क्या? उसके यही है क्या? यही है। अगर कोई बाहर वाला कोई बंदा आए जो मसीह को नहीं पहचानता, वो क्या, वो देखेगा, बोलेगा यार इधर यीशु मसीह में आने बोले तो गिरना उठना, गिरना उठना, यही मालूम पड़ेगा उसको, और क्या मालूम पड़ेगा? तो बेसिकली कलीसिया में क्यों मैं आ रहा हूँ, आने का कारण क्या है, पर्पस क्या है? मैं मेरे पिता को देखने आया हूँ, मिलने आया हूँ, उसकी आराधना एक परिवार की तरह करने आया हूँ, एक परिवार के, मेरे परिवार के साथ में करने आया हूँ, पूरी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ में, ताकि जिस बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए यीशु मसीह को भेजा गया उसका पर्पस सफल हो। ये कारण की वजह से मैं कलीसिया में आता हूँ, टू लव हिम, टू अडोर हिम,
together with the saints. This is the purpose. ये नहीं है पर्पस, मुझे क्या मिल सकता है, यही हो गया पर्पस। और ये गलती लोगों की नहीं है, ये गलती पास्टर लोगों की है कि हमने चर्च के पुलपिट को एक मार्केटिंग स्टंट करके इस्तेमाल किया ताकि भीड़ हमारी इधर बढ़ती जाए। अगर वैसे देखा जाए तो सबसे कम वाली कलीसिया यीशु मसीह की थी, सिर्फ 12 लोग थे। उसमें से एक, वो भी एक फॉल्टी निकला तो 11 हो गया टोटल। जी हाँ। और सिर्फ 120 जन बैठे थे ऊपर, बस खत्म हो गया। इतना ही कांग्रेगेशन था यीशु मसीह का। इसका वैसे देखा जाए तो सबसे पुअर मिनिस्ट्री यीशु मसीह की रही। सबसे उससे भारी हो गई पतरस की, 3,000। फिर तो यीशु मसीह से भारी पतरस निकला। ऐसा मैं बोलूं, ऐसा बोलूं रॉन्ग तो गलत है। देन हम खुद जानते हैं यीशु मसीह की वजह से आज कितनी बड़ी कलीसिया आज बन गई है। लेकिन numbers is not your point of contact or reason to come to church, or should be the reason to come to church. Never. तो इससे ये पता चलता है पास्टर कि लोग एक कलीसिया छोड़कर दूसरी जगह क्यों जाते हैं, दूसरे से तीसरी जगह। शायद ये उनका पर्पस जो है कलीसिया जाना शायद वही सही नहीं है, या है ही नहीं, सिर्फ जाना है, या फिर जहाँ पे भीड़ है, जहाँ पे ऐसा कुछ है, या फिर आपने जैसा कहा सामर्थ का डिस्प्ले होता है, वहाँ पे जाके जुड़ जाते हैं बस। अभी मैं खुद जानता हूँ, एक ब्रदर है अपनी कलीसिया में थे और उन्होंने स्टेज से कहा कि ऐसे पास्टर कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ऑसम पास्टर, परफेक्ट परमेश्वर की इच्छा बताते हैं, और खुद छोड़ दिया चर्च। मीन्स लॉजिक क्या है? अगर मैं जानता हूँ कि यहाँ पर पानी मिल रहा है लेकिन मैं फिर भी वो छोड़ूंगा, तो फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट? सही है। तो बेसिकली परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ाए रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि कोई कलीसिया में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, या वो मैल नरिश्ड कांग्रेगेशन होता है, क्योंकि पासबान जो है वो वचन को उस लेवल के और या फिर उस टाइम के अनुसार नहीं दे रहा होगा। पॉसिबल है, वो मास्टर में गलती हो सकती है। उस समय में तुम इंटरनेट से कहीं से तुम वचन लेते हो, खुद को फीडिंग करते हो, आई कैन 100% अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर उसमें अगर उस कलीसिया में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ओके, और तुम्हें अगर वो प्राइम पोजीशन नहीं मिल रही हो, समझो, तो इज नो नीड टू लीव द चर्च। यू कैन, आप वहीं पर रह सकते हो और ग्रो हो सकते हो, और वहीं से तुम बढ़ सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां कार्य कर रहा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा कार्य ही नहीं करता है वहां पर ना वचन है ना कुछ भी नहीं है, तो तुम छोड़ते हो, मैं समझ सकता हूँ, ओके, अंडरस्टूड। लेकिन अब पवित्र आत्मा अगर कार्य कर रहा है, अगर वहां पर तुम पवित्र आत्मा काम देख रहे हो, और अगर तुम कहीं और से भी वचन का तुम खाद ले सकते हो, इसका मतलब तुम्हें कलीसिया छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ, कोई भी स्पिरिचुअल फ्रॉग मत बनो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से। मैं बेसिकली इसके बहुत खिलाफ हूँ, आत्मिक मेंढक। यस। तो एलाइस वाज अ मैन, एंड आप भी इंसान हो, सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस एज वी आर, लिखा है, सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस एज वी आर। पढ़ो वचन 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उस नहीं, ये दुख सुख नहीं है, सब्जेक्ट टू लाइक पैशंस एज वी आर। जो भी पैशंस मीन्स सारी चीजें जिसमें दुख है, सुख है, वासना है, भावना है, सब कुछ है, उस सब भावनाओं के, सब पैशंस को वो सब्जेक्टेड था। फिर भी परमेश्वर ने उसको सुना। इसको तो जो अय्यूब यहाँ पर कहना चाहता है कि भले तुम्हारी सिचुएशन कैसी भी रहे, याकूब सॉरी, कैसी भी रहे, डोंट स्टॉप प्रेइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। फिलहाल हम इंसान इस विषय पर ही है, तो एक सिस्टर है, सिस्टर कविता तांबिले, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को रचाया, उसने बनाया है, ब्रह्मांड को बनाया है, आदम को बनाया है, और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि हवा को आदम के पसली से बनाया।
ऐसा क्यों नहीं कि परमेश्वर ने हवा को उसी मिट्टी से या फिर कोई अलग मिट्टी से वो क्यों नहीं बनाया, उसने क्यों नहीं नहीं, बनाया? परमेश्वर ने मिट्टी इस्तेमाल की, 100% इस्तेमाल की, लेकिन फर्स्ट रॉ मटेरियल जो लिया गया था वो आदम की फसलें थी। तो फसली से एक और बात, उन्होंने एक और सवाल ये पूछा है कि अगर एक इंसान को हम ले और इंसान के अंदर से अगर हम एक भाग को निकाले तो एक मिनट, पहले उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मिट्टी इस्तेमाल की, सब कुछ इस्तेमाल, लेकिन जो आदम को देना है वो आदम के द्वारा ही आएगा, ये मैंने जज में प्रीचिंग किया है। अगर आपको कुछ चाहिए परमेश्वर की ओर से तो परमेश्वर आपके थ्रू ही कार्य करेगा, ये वचन में भी लिखा गया है। तो होली स्पिरिट वर्क थ्रू यू, तो यू कैन नॉट माइनस योर सेल्फ। अगर समझा, मैंने कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि अगर आपको फ्लैट चाहिए तो आप दुनिया को बोल नहीं सकते मेरे लिए दुआ करो और आप आराम से सोए पड़ेंगे, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपके द्वारा ही आप आने वाला है। Whatever you want for yourself, it will come through you. You cannot minus it. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरा समझो 5 एकड़ या फिर 10 एकड़ की जमीन है समझो, और मैंने ट्रैक्टर लगाया, ट्रैक्टर रेंट पे ले लिया, और मैंने उसको बोला तू पूरा का पूरा ये जो खेत है उसको तू रेडी कर ले, और बोने वालों की मैंने बोने की मशीन लाई और उनको बोला तुम बो डालो, और मैं वहाँ पर खड़ा ही नहीं रहा देखने की वो क्या कर रहे हैं, कैसे वो खेत को वो कैसा उसको हल चला रहे, क्या कर रहे, कुछ देखने को नहीं था। ना मैं सुपरविजन के लिए था, ना मैंने वो उसका जो प्लॉइंग है वो नहीं देखा, ना मैंने बोना नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मुझे बताओ, कैन आई गिव अश्योरेंस 100% कि उधर सही तरीके से ही वहाँ पर खेत में फसल उगेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं था ही नहीं वो देखने के लिए। और क्यों? लेकिन जिनको मैंने लगा वो नहीं ठीक से करेंगे, अभी कोई देखने के लिए है ही नहीं, वो कैसे भी काम करेंगे। करेक्ट। जो जिस इंसान का वो है ही नहीं, वो इंसान उससे रिलेट नहीं कर पाता, और उसको उस चीज का फीलिंग नहीं होता है, वो ही इज नॉट जॉइन टू इट। यही प्रॉब्लम है। तो हमें क्या लगता है, जैसे अभी आदम का एग्जांपल, आदम तुझे चाहिए ना, तुझे ही सोना पड़ेगा, तुझसे ही निकाला जाएगा। भले उसमें और थोड़ा सा मट्टी डाल के व्हाटएवर लॉर्ड ने किया है, लेकिन आदम के द्वारा ही, आदम के लिए चाहिए तो आदम के द्वारा ही आएगा, आदम में से ही आएगा। तो वैसे ही पतरस को अगर मछली देनी थी तो पतरस को ही जाना पड़ा, सॉरी पतरस का कर भरना था, तो टैक्स भरना था, तो पतरस को जाना पड़ा, और उसमें से ही उसको मछली खुद को पकड़नी पड़ी, उसका पेट फाड़ के उसके मुंह से जो भी ना वो जो सोने का एक सिक्का निकला उसको ही कर। जो तुम्हें चाहिए वो तुमको ही उतरना पड़ता है मैदान में, दूसरा उतर के नहीं चलता है। इफ यू वांट इट यू हैव टू गो एंड गेट इट, सिंपल एज दैट। इसलिए आदम को सुलाया, आदम में से फसलें निकाली और हवा को बना के वापस आदम के पास ही ले गया। तो मुझे विश्वास है सिस्टर आपको इस सवाल का जवाब जो है वो जरूर मिला। और उनका अगला सवाल ये है कि इंसान में से अगर कोई भी चीज निकाला जाए या फिर उसका एक भाग निकाला तो तकलीफ होती है, तो यहाँ पर क्या आदम को तकलीफ हुई होगी या नहीं? तकलीफ हुई होगी, इतना मैं जान सकता हूँ कि हवा के आने के बाद उसको बहुत तकलीफ हुई। वो मिलने तक उसको कोई तकलीफ नहीं थी, मिलने के बाद 100% तकलीफ हुई उसको। इतना मैं गारंटी कह सकता हूँ। शायद तब आदम ने बोला होगा कि यार क्यों मैंने ऐसा एड़ेगिरी की और ये औरत को लाया, मेरी वाट लग गई उसकी वजह से। एनीवेज, बट जोक्स अपार्ट, लेकिन तकलीफ हुई होगी क्या, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, जिसने आदम को बनाया वही ऑपरेशन कर रहा था। नहीं तो गॉड्स वर्क इज क्लीन है उसका काम, क्या कह सकते हैं। तो वहाँ पे ये भी लिखा है कि उसे वो गहरे निद्रा में था। नहीं, गहरी निद्रा कुछ भी होने दो, लेकिन लॉर्ड है वो।
मैं अब इस वक्त मैं मेरे पैर के बारे में सोच रहा हूँ और मेरे ब्रेन में जो नस फूट गई थी, क्या मैं वो समझा भी नहीं कब वो जुड़ गई, कब ये हो गया, आई डोंट नो। ये पैर भी जब ठीक हो गया, नथिंग, नो पेन। वो थोड़ी इंसान की तरह काम करता है। ही इज द क्रिएटर, उसको क्या है, फूक मारेगा, फूक मारने के वो टच कर रहा था उसको, कैसा पेन होगा उसको, आई डोंट नो, नो आई डोंट थिंक सो। काश अगर उसको आदम को पेन होता तो अच्छा होता शायद। वो तो मत निकाल। नहीं, वो फिर वो उसका वैल्यू समझता था हवा का, तो शायद उसको वो इज्जत में रखता था लॉर्ड के सामने। करेक्ट, बिकॉज वेयर देयर इज पेन देयर इज वैल्यू, देयर इज रिलेशन टू वैल्यू, दैट पर्टिकुलर थिंग। उस अगर जहाँ पर दर्द है वहाँ पर उस चीज का मोल हमें मालूम पड़ती है और फिर हम उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो पेन हो गया, बिकॉज आदम को हवा का कोई वैल्यू नहीं था और ना हवा को आदम की वैल्यू थी, बिकॉज आदम को पाने के लिए हवा ने कुछ नहीं किया था। जी हाँ। और हवा को पाने के लिए आदम ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। जहां पर दर्द नहीं है वहां पर वैल्यू नहीं है। ये बहुत इसलिए हम भी शायद लॉर्ड का सैल्वेशन हल्की तरीके से लेते, क्योंकि हमको दर्द में से फेस हमने नहीं किया वो, तो हम उस क्षण से गुजरे ही नहीं है, so we don't have, हम पर कुछ भी नहीं बीती है। दैट्स व्हाई लॉर्ड का अधिकार आता है, मिलता है, ताकि वो हमको नरक में फेंक सके। वो अधिकार लॉर्ड को मिलता है क्योंकि उसने वो प्राइस पे किया, उसने दर्द सहा है हमारे लिए सहा है। दैट इज, तो नहीं, आई डोंट थिंक सो उसको कोई दर्द हो गया हो, नथिंग, जीरो। तो मुझे ये भी विश्वास है सिस्टर, आपको इस सवाल का भी जवाब मिला है कि उसे शायद दर्द हुआ नहीं है, लेकिन एक अहम बात आपने कही है, जाकि जहाँ पर दर्द है वहाँ पर कीमत समझ में आता है, मूल समझ में आता है। क्या बात है। तो बेसिकली आज के हम इसमें देखते हैं कि ये जो बंदा था सॉल, ये एक स्मार्ट किड निकला।